সভাপতি মহোদয়, বিধায়ক অপোজিশন মহোদয়, মঞ্চের ভবিষ্যৎ আমার সকলে কংগ্রেসের প্রতি সম্মানের অবগতিকে প্রদান করে আমার অতিথিবৃন্দ মহিলা সদস্য রয়েছে আপনারা সকলে কংগ্রেস কমিটি বন্ধুদের মাধ্যম পরিবেশন করে অনুদান সভাপতি বন্ধুদের মাধ্যম মাধ্যম আপনাদের অতিথি যেভাবে করবে অতিথি মাধ্যম কংগ্রেছৰ মহিলা সভাদলৰ সকলোকে আন্তৰিক অভিনন্দন কৰিছোঁ। এতিয়া আমি ভৱিষ্যত আমাৰ অতিকৈ শ্ৰদ্ধাৰ সন্মানৰ অতিথিবৃন্দক ফেলিচিটেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে মই সকলো কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক শ্ৰীযুত বৈদ্যুত ভূঞা আৰু আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক ৰেডিঅ' নাগৰ আহ্বান জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। আমাৰ আজি সৌভাগ্য আমাৰ মাজত মিটিং দ্বাৰা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি আন্দোলনৰ মাতৃত্ব ধৰিছে লগতে বিধায়ক অপজিশ্যন লোকসভাৰ আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত আছে। আমাৰ আজি এই মা সংগীতৰ কমিটিভাগ এই ভূমিত আপোনালোকৰ মাজত আজি আমাৰ এই কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী সভাত উপস্থিত হৈছে। আমি তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আমাৰ অসমৰ শ্ৰমিক এখন গামোচাৰে আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি মাননীয় গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া মালিকৰঞ্জন খড়গে ডাঙৰীয়াক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। মই আমাৰ বিৰোধী দলৰ সভাপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াক এটা দাবীৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ Working President and Administrative Secretary, Secretary, Secretary,
চ্যালেঞ্জ থাকলে তেখেতক সম্বোধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ আমার আন্দোলনে ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট রোজগার বিদ্যালয়ে একটা জাতিরে তেখেতক সম্বোধনা জনাবলৈ এখন ফরালে তেখেতক সম্বোধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ Madam Boguri. আমি আমার রকম প্রজেক্ট কংগ্রেসের সভাপতি মাননীয় গৌরবকে জানাবে আমার নেতা আমার প্রিয় নেতা রঘুবর জানাবে এটা জানিয়ে এখন গামছা আর আমার মাননীয় বিরোধী দলের সভাপতি আমার প্রাক্তন সভাপতি ভূপেন কুমার লোহাগাড়ে এখন এই সভাতে একটা সম্বোধনা জনাবলৈ অনুরোধ জানাইছোঁ আমার সংসদ রকিবুল হাসান তুলসী জানাবে এখন চ্যালেঞ্জ থাকলে আমার প্রিয় নেতা রাজেন্দ্র জানাবে সম্বোধনা জানাব আর আমার আমি জানাবে এখন একটা সভায় তেখেতক সম্বোধনা জনাব আমার মাইবাদ উপস্থিত আছে বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক অঙ্গরামর ডাইরেক্টর প্রধান এসিসি গোপাল লাগবে তেখেতক গৌরব লাগবে এখন আমাদের একটা বড় লাগবে আমার মাঝে আছে আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক হিন্দু লক্ষ্মী নগরে তেখেতক মাত্র কংগ্রেস কমিটির অঙ্গরামর আমার সভাপতি গৌরব লাগবে বিধায়ক কমিটির দান করে রাহুল গান্ধী নগরে এখন উলান লাগবে রাখা হলো এই দিকে আমি আমার সম্বোধনা অনুষ্ঠান করেছি মই বিপুলভাবে নগরে পরবর্তী অনুষ্ঠান আয়োজন অনুরোধ জানাবো মই আমার অসমৰ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু বিধায়ক দুয়োগৰাকীক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এতিয়া আমাৰ শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ স্থানৰ ইতিমধ্যে দ্বিতীয়বাৰ সাংসদ হৈ সংসদৰ মৰ্যাদা অনুসাৰে যশস্বী ভাগৱতীৰে আলোচনা সৃষ্টি কৰা তেখেতৰ সমগ্ৰ ভাৰতৰ বিষয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ নয়নত ওলাই হ'বলৈ সক্ষম হোৱা ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক মঞ্চত তেখেতৰ ত্যাগ আৰু ভাৰতৰ অমোচন অনুদান ৰূপৰেখা অংকন কৰা এগৰাকী আমাৰ অতিকৈ শ্ৰদ্ধাৰ সকলোৰে আগৰ সাংসদ ডেপুটি লিডাৰ অফ অপজিশ্যন আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সন্মানীয় সভাপতি শ্ৰী গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ বক্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ কংগ্রেস দলৰ ব্লক আৰু মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সভাপতিসকলৰ লগত অনুষ্ঠিত হোৱা আজি এখন কৰ্মী সভাত উপস্থিত থকা আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি মাননীয় ত্ৰিপাঠী ডাঙৰীয়া উপস্থিত থকা বিৰোধী দলৰ সভাপতি মাননীয় ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া উপস্থিত থকা নীতিগত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক এসিসি গোপাল ডাঙৰীয়া
AICC জেনারেল সেক্রেটারি জেনারেল সিং নামরিয়া বিধানী মণ্ডল সভাপতি দেবব্রত হরিয়া রামরিয়া মঞ্চ উপস্থিত সভাপতি দীপেশ বড়া নামরিয়া রবিকুল সিং নামরিয়া রিপুল বড়া নামরিয়া আর মঞ্চ উপস্থিত সভাপতি ইয়াৰ উপস্থিত সভাপতিসকল আৰু ইয়াৰ উপস্থিত কৰ্মীসকল আজি আপোনালোকৰ এই উপস্থিতি প্ৰমাণ কৰি দিছে যে এইবাৰ জয় জয়খন হ'ব आज कांग्रेस के कंधों पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है क्योंकि आज असम में जो डर और दहशत का जो वातावरण है इस डर और दहशत के वातावरण से अगर लोगों को कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। आज यहाँ पर उपस्थित हमारे असम प्रदेश के हर जिलों से हर मंडल से हमारे मंडल কোম্পানী সরকারের নিচিনাকৈ বিজেপি বহিৰাগত পুঁজি হৈছে তেখেতসকলে ভালদৰে লগাবলৈ ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিহীন লোকসকলক মানে কথা পাতি উচ্ছেদ কৰিছে কিন্তু প্ৰচাৰ চলাইছে সৌন্দৰ্যযুক্ত বাংলাদেশী উচ্ছেদ 11 বছৰ শাসনত থকাৰ পিছতো 16 মে 2014 চনত অসমক বাংলাদেশী মুক্ত কৰি দিয়াৰ পিছতো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এতিয়া বাংলাদেশী ভূত দেখাই আছে অসমৰ ৰাইজক আৰু অসমীয়াক আগ্ৰহ কৰিছে আৰু তথাকথিত বাংলাদেশী বিৰুদ্ধে এটা আন্দোলন তেখেতসকলে ৰাজনৈতিকভাৱে চলাই আছে আৰু এই উচ্ছেদিতসকলক কিন্তু এয়াৰটেলে উচ্ছেদ কৰাৰ পিছত অন্য স্থানত পইচা দিছে সংস্থাপন কৰিছে আমি বিদেশী সংস্থাপন নহয় অসম চুক্তি অনুসৰি আমি বিতৰণ বিচাৰো যদি আমাক বিদেশী তেখেতসকলক বাংলাদেশলৈ পঠোৱা হোৱা নাই এই ঘৰবাৰীৰ সময়ত কোনো পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নোহোৱাকৈ আবাল বৃদ্ধ বনিতা ঘৰৰ পৰা ৰাস্তালৈ উলিয়াই দিছে তেখেতসকলৰ লালসাৰ বাবে লখিমপুৰত কঠীয়াতলী বুলডোজাৰ চলাইছে উচ্ছেদ কৰিছে তেওঁলোকক লাগে কেৱল টকা আৰু সম্পত্তি লাগিলে তাৰ বিনিময়ত অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ সপোন খানবান হৈ যাওক বিজেপি চৰকাৰৰ উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ লোমান আমি গৰুকুটি প্ৰকল্প দেখাইছো যি গৰুকুটিৰ পৰা গীৰগাই তেওঁলোকে নিজে নিজে লৈ গুচি গ'ল উত্তৰ পৰা যিবিলাক প্ৰকল্প আনিছে তাৰ পৰা কেনেকৈ বিজেপিৰ নেতাসকলে নিজে বা আঙুলি কমৰিয়াই লাভ ল'ব পাৰে সেই কথাই তেওঁলোকৰ প্ৰাথমিকতা কয়লাৰ পৰা বালিলৈ
গৰুৰ পৰা মুৰ্গী লৈ চুপাৰীৰ পৰা গুটখা লৈ বিজেপিৰ চৰকাৰৰ সিন্ডিকেট চলি আছে আৰু তাৰ ওপৰত ৰেড মাইনিং অবৈধ খনন ইত্যাদি বিভিন্নবিলাক হৈ আছে। অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ আমাৰ ভিতৰত কৰি বুলি কোৱা বিষয়ৰ পৰা চৰকাৰে ফালনি কাটি আছে। চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি 351 টকা কৰি বুলি কোৱাৰ পিছত এতিয়া তেওঁলোকক 5,000 টকা দি ইলেকশ্যনৰ আগে আগে ভোট বিনাশ পৰ্যন্ত কৰিছে। উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰখনক আমি বাকী ফাঁকি আৰু মাটি চৰকাৰ বুলি যে ক'ব লাগিব ই নিশ্চিত। আজি অসমৰ নালৰ নাথল অৱস্থা, এফালে বানপানী আনফালে কৃষিভূমিত পানী নাই। নদী বান্ধে এৰি দিয়া পানীয়ে ৰাইজক এহাতে নিদিয়াটো বুজাইছে, আনফালে কৃষি কাৰ্যৰ বাবে মানুহে আকাশলৈ চাই ৰৈ থাকিব লগা হৈছে। অসমৰ যি ভূমি এই ভূমিৰ মাত্ৰ 20% পানীৰ ব্যৱস্থা আছে বুলি বিধানসভাত ইতিমধ্যে মন্ত্ৰীয়ে স্বীকাৰোক্তি দিছে। কিন্তু 2016 চনত তেখেতসকলে সকলো খেতি পথাৰত পানী দিম বুলি আমাক বিজেপিৰ দৃষ্টিপত্ৰত উল্লেখ কৰিছিল। যি জল জীৱন মিছনৰ একেই অৱস্থা, ঘৰ জল পানী জেগাত এতিয়া অকল পানীৰ পাইপটো থাকে কিন্তু কোনো পানী নাথাকে। আজি অসমৰ এই হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ পৰা মানুহৰ মনোযোগ অন্য ভাগলৈ নিবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই জাতি ভিত্তিক ধৰ্ম ভিত্তিকত মনোনিৱেশ কৰিছে। তেখেতসকলৰ নীতি ইংৰাজৰ দৰে ডিভাইড এণ্ড ৰুল। আমাৰ অসমখন তেওঁলোকে ভাগ কৰিছে আৰু আমাৰ ভাই ককাইৰ মাজত সম্বন্ধবোৰ দুৰ্বল কৰিবলৈ এটা অভিযান চলাইছে। সমাজত যিমানে হিংসা সন্দেহ বৃদ্ধি পায় তেওঁলোকে সিমানে ভাল পায় আৰু তাৰ বাবে তেখেতসকলে অসমৰ শান্তিপ্ৰিয় জনগণৰ হাতত বন্দুক তুলি দিয়াৰ লাইচেঞ্চ দি বুলিও ঘোষণা কৰিছে। আমি অসমৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে তেওঁলোকৰ এই সপোন পূৰণ হ'বলৈ নিদিওঁ। অসমক যেনেদৰে অসমৰ জনগণক প্ৰতাৰণা কৰাৰ আকৌ ব্যৱস্থা কৰিব বিচাৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি সংকল্প গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আমি 2024 ঐক্য আৰু সম্প্ৰীতিৰ বাবে যুঁজিম। আমি অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে যুঁজিম। আমি অসমৰ কৃষকৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মান ৰক্ষাৰ কাৰণে যুঁজিম আৰু এইবাৰ এখন নিশ্চিতভাৱে যুঁজ হ'ব। এই যুঁজত আমি সকলোৱে যুঁজিম আৰু জয় লাভ কৰিম। এখন যুঁজ নিশ্চিতভাৱে হ'ব আৰু এই যুঁজত আমি জয় লাভ কৰিম আৰু এই যুঁজৰ বাবে আমি সকলোৱে আগন্তুক সময়ছোৱাত কাম কৰিব লাগিব। আজি সভাৰ পৰা এই আহ্বান জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। জয় অসম, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ জিন্দাবাদ। আমি এসএফ লিডারশিপ দেবগত হইতে ডাঙৰীয়া আন্তৰিক ধন্যবাদ দিছো তেখেতৰ বহুমূলীয়া ভাষণৰ বাবে। মে আই ৰিকুৱেষ্ট our honorable AICC General Secretary in charge of Assam, Shri Jitendra Singh sir, to kindly deliver his valuable speech. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्री मनोज खड़गे साहब, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे साथ विराजमान हैं हमारे केसी वेणुगोपाल साहब, गौरव गोगोई जी, पीएलपी लीडर साइकिल साहब, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सभी हमारे मंडल के साथी आए हैं, ग्राम पंचायतों से आए हैं, सदिया से लेकर यूपी तक आए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आप, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय राहुल गांधी जी को, खड़गे साहब को, कि आज की जो बैठक है वो एक अलग तरह की बैठक है। मुझे लगता नहीं है कि गणेश नगर की बैठक हुई है जब पार्टी के कार्यकर्ता, जो पार्टी की आन बान और शान है, जो हमारी पार्टी की नींव के पत्थर है, उनसे मिलने के लिए आप आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खड़गे साहब और राहुल जी, ये जो हमारे फौज के जो सिपाही हैं, ये रात और दिन कांग्रेस पार्टी के लड़ते हैं, आसाम की जनता के लिए लड़ते हैं। और जिस तरह की सरकार चल रही है, कोई सोशल मीडिया के अंदर कोई पोस्ट डाल देता है तो शाम को पुलिस आ जाती है। किसी की दुकान है तो दुकान बंद करके जाती है। किसी का बिजनेस है तो उसके पास शाम को इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते हैं। किसी का परिवार में कोई टीचर लगा हो, कोई छोटा मोटा अफसर लगा हो तो उसका ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस की जो
हर कार्यकर्ता खड़ा हुआ है मजबूती के साथ। अब इंदिरा बाप का घर भर चुका है, पानी सड़कों से निकलने वाला आसाम की जनता ने तय कर दिया है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकना। किस तरह का माहौल पूरे आसाम के अंदर बन रहा है, बताओ सही बात है नहीं, हाथ करके बताओ। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि मुझे बहुत प्रेम मिला है पिछले 4 साल में एक साल हर ब्लॉक में हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैं जाकर सिर्फ इनका एक संदेश आपके पास पहुंचाना चाहता हूँ कि आपको वादा करते हैं 2026 के चुनाव के अंदर कांग्रेस का झंडा लहराएगा और जितने भी लोग हैं मुख्यमंत्री का पूरा परिवार उनको जेल लेके चला गया, ये आपको कहने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार हाथ खड़े करते राहुल जी को वादा करने की सरकार को हाथ खड़े कहने के 2026 के अंदर। जय हिंद, जय भारत। We express our sincere thanks and gratitude to Honorable Shri Jitendra Singh sir. The presence of Honorable Vikata Opposition and former President AICC, Honorable President AICC and dignitaries, it has given us immense encouragement and it will give a new vibrancy, new zeal and vigor. May I request our Honorable Vikata Opposition, Shri Rahul Gandhi sir, to kindly address the जितेंद्र सिंह जी, गौरव गोगोई जी, साइकिल जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सीनियर नेता, एमपी, एमएलए, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, पंचायतों से आए हैं, बूथ के जो वर्कर्स हैं, आप सबका यहाँ मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार, आपका मूड कैसा है? ठीक से बोलिए भाई, मूड कैसा है? ये आप लोग सब कांग्रेस पार्टी के शेर और शेरनियां हो और शेर और शेरनी किसी से नहीं लड़ते हैं। आप हमारे नीति हड्डी हो, कांग्रेस पार्टी की बैकबोन हो, आपके खून में, आपके डीएनए में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और ये पूरे देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ आरएसएस नफरत और हिंसा की विचारधारा, बांटने की विचारधारा, भाई को भाई से लड़ाने की विचारधारा, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सत्य और अहिंसा की विचारधारा, जोड़ने की विचारधारा, नफरत फैलाने की विचारधारा, ये लड़ाई चल रही है। और आप लोग सत्य और अहिंसा कैसे पाएंगे? भाइयों बहनों, आप सामने वाले जानते हो, मगर जो आसाम में हो रहा है वही पूरे देश हो रहा है। यहाँ पे आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझ रहे हैं, आसाम में राजा समझ रहे हैं। और आसाम का राजा 24
24 घंटे कभी अडानी को, कभी अंबानी को आपका धन, आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं, है ना? मगर अगर आप अपनी आवाज अच्छी तरह से सुनोगे, टीवी में अगर आप उनको अच्छी तरह देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि आवाज के पीछे डर है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, मगर आप आज जाकर टेलीविजन में उनका चेहरा देखना, उनकी आवाज सुनना, और आपको दिखेगा कि उनकी आवाज में, उनकी दिल की गहराई में डर है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो कपड़ हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। और देखिए, मैं बिना सोचे समझे नहीं बोलता हूं, और आमतौर से जब मैं जो बोलता हूं वो होता है। मैंने कोविड के समय बोला था, नोटबंदी के समय बोला था, जीएसटी के समय बोला था, और मैंने आपको दिखा, और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाकर के दिखाएंगे, और इससे उनको ना नौकरी बचा पाएगा, ना हमेशा बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको देखेंगे, और ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। ये काम असम के जो युवा हैं, असम के किसान हैं, असम के मजदूर हैं, असम के हर जात के लोग, हर धर्म के लोग ये काम करने वाले हैं, क्योंकि उनको मालूम ये व्यक्ति जो है ये भ्रष्ट व्यक्ति है, ये 24 घंटा असम की जमीन लेता है, कहीं सूरत के बहाने, कहीं रिजॉर्ट के बहाने, ये असम से 24 घंटा चोरी लगता है। ये आप जानते हो, असम का बच्चा जानता है, सारे सारे मीडिया वाले जानते हैं। मैंने तो दोस्तों बोला, कहता हूं मीडिया के हमारे मित्र, मगर ये हमारे मित्र नहीं है, क्योंकि ये आजकल ये जो आदत चल रही है, ये आजकल सच्चाई नहीं दिखाती है ना? ये जो अम्बानी जी कहते हैं, अडानी जी कहते हैं, आप चीफ मिनिस्टर कहते हैं, वो दिखाते हैं 24 घंटा। नरेंद्र मोदी जी अमित शाह कहना दिखाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई असम की जनता का गंदी, असम की जनता के दिल में है। और आप देखना, कुछ ही समय में चुनाव होगा, और आप देखना कांग्रेस पार्टी के चुनाव को स्वीप करके जीतेगी। यहाँ
एक नई टीम बनती है और मैं गौरव गोगोई जी को बाकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने काम शुरू किया है और इसका नतीजा आसाम की जनता को जरूर दिखेगा, हम सब भी देखेंगे। भाई नरेंद्र ने आपसे आसाम की बात की, थोड़ा सा मैं आपको देश के बारे में बताना चाहता हूँ और ये आसाम में लेने की जरूरी नहीं। भाई नरेंद्र कुछ समय पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ और महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से बीजेपी ने चुनाव में जीती। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर बने। लोकसभा खत्म हुआ, चार महीने के अंदर पता नहीं कहां से 1 करोड़ नए वोटर आए। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा ये कहां से आए, ये कौन लोग हैं, हमें वोटर लिस्ट दिखाइए। इलेक्शन कमीशन ने आज के साथ हमें वोटर लिस्ट दी। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि वीडियोग्राफी हुई है आपको बूथ में, हमें वीडियोग्राफी दीजिए क्योंकि ये सारे नए वोटर जो आए हैं इन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। लोकसभा में चुनाव हमारा गठबंधन जीता है। 1 करोड़ नए वोटर आते हैं 4 महीने में और फिर विधानसभा में हम हारते हैं। तो मैंने इलेक्शन कमीशन से कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाइए, उन्होंने मना कर दिया, काम बदल दिया। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन ने तो जीत दिया है। मैं आपको इस तरीके से कह रहा हूं और वही काम वो बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि उन्होंने बिहार में नई वोटर लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी है और उस वोटर लिस्ट से लाखों करोड़ों लोगों को वो हटा रहे हैं। किसको हटा रहे हैं? गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, कांग्रेस पार्टी के वोटर्स को, आरजेडी के वोटर्स को। हम वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, हम उन पर दबाव डाल रहे हैं, मगर मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और वोटरों को कहना चाहता हूं जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो ये बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं, वही आसाम में कोशिश करने की कोशिश करेंगे। और ये आप सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये काम हम नहीं करने देंगे। तो आपको सावधान रहना है क्योंकि बीजेपी वाले और इलेक्शन कमीशन ये एक साथ आजकल काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। इलेक्शन कमीशन पूरे तरीके से बीजेपी और मोदी नेताओं की बात सुन रहा है। हमने उनसे अनेक बार वोटर लिस्ट मांगी है, आज तक हमें वोटर लिस्ट मिली ना वीडियोग्राफी मिली। बहाने जब बनाते हैं फिर डिग्री मिली है, बहाने बनाते हैं अपना काम नहीं करते हैं। तो आपको सावधान रहना है, आपकी लीडरशिप को सावधान रहना है। और यहाँ पे हम सबकी जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्ट सही तरीके से बने और वोटर लिस्ट से सारे लोग जो भी आसाम में रहते हैं सारे लोग उस वोटर लिस्ट से बने। भाइयों बहनों, जो आसाम में हो रहा है
वो हिंदुस्तान हो रहा है। यहाँ पे आपकी जमीन हजारों एकड़ किसी न किसी बहाने अदानी को, अंबानी को, रंगरेले को दी जाती है। वही महाराष्ट्र में हो रहा है, वही हिंदुस्तान के कोने कोने में हिंदुस्तान की सरकार कर रही है। जहां भी आप जाएं, जो छोटे बिजनेस वाले हैं, जो देश की नीति हटी है, किसान है, मजदूर है, उनको खत्म किया जा रहा है और 5-6 अरबपतियों को हिंदुस्तान का घर, जंगल, जमीन, धन पूरा का पूरा दिया जा रहा है। ये लड़ाई है, ये देश 5-6 अरबपतियों नहीं है। ये देश आपका है, आसाम के युवाओं का है, किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का है। आज हालत ये हुई है कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, महंगाई बढ़ती जाती है, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं, अनाज के सब्जी के दाम बढ़ते जाते हैं, आपको रोजगार नहीं मिलता। पहले सरकारी अस्पताल होते थे, फ्री में आपको इलाज मिलता था, उन सबको प्राइवेटाइज कर दिया। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, उसमें आपको फ्री में एजुकेशन मिलता था। आज जब जहां भी आप देखोगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, जहां भी आप देखोगे, आप देखेंगे से पैसा मिलेगा और पैसा कहां जाता है? उन्हीं 5-10 अरब रुपए के देते जाता है। ये फर्क है बीजेपी में और कांग्रेस में। हम गरीबों के लिए लड़ते हैं, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए लड़ते हैं, छोटे व्यापारियों के लिए लड़ते हैं, मनरेगा जैसे प्रोग्राम डालते हैं और ये अरबपतियों का काम करते हैं। इससे देश का फायदा नहीं हो। तो हिंदुस्तान बंद है, एक अरबपतियों का, उनके बच्चे जो भी सपना लेकर चाहते हैं, हजारों करोड़ रुपए की शादी भी हुई थी, पता नहीं आगे देखेगी, अम्बानी की शादी आगे देखेगी, हजारों करोड़ रुपए में चले जाते हैं। मगर आम जनता के लिए गलत ये महंगाई अभी भी प्राइवेटाइजेशन है। इसके खिलाफ है और लड़ाई विचारधारा की है। आसाम में भी आप लोग जो आए हो, हमारे लोग से आए हो, हमारे जो मंत्री हैं, आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेकर चलते हो, आपके दिल में हमारी विचारधारा है और इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्या हमारे शेर हो, हमारे शेर हो और आप हमारे लड़ते हो, हमारे विचारधारा करके रख सकते हो। दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और अगर मैं फिर से दोहरा हूँ, आप आज शाम को अपने चीफ मिनिस्टर की आंखों में, टीवी में आंखों में देखिए, अगर आप नीचे से देखेंगे उनका क्या हाल हो दिखेगा। और याद रखिए चुनाव के बाद आपके चीफ मिनिस्टर इसी मीडिया में आपको चलिए दिखाई देंगे। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। We express our sincere thanks and deepest gratitude to our leader of opposition, Sri Rahul Gandhi sir. The people from different parts of Assam has come. Now, I request Honorable Congress President Sri Mallikarjun Kharge sir to kindly address the gathering. इस मंच पर बैठे हुए लीडर ऑफ ऑपोजिशन
श्री राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, जितेंद्र सिंह जी, गौरव गोगोई जी, डेबरा सैकिया जी और एमपी एमएलए और एक सभा के आए हुए सभा में तो ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, मंडल प्रेसिडेंट हैं और सारे मेरे भाइयों और भाइयों यहाँ पर आए हैं। आप सबको मैं नमस्ते करता हूँ और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये आसाम कांग्रेस के लिए एक मजबूत गढ़ है। शायद आसाम के लिए बीजेपी 1940 से कोशिश कर रही है यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट बनाने के लिए, लेकिन आज तक बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं बन सकी। लेकिन कांग्रेस के एक आदमी को उधार लेकर आसाम का चीफ मिनिस्टर बीजेपी ने बनाया है। आज ऐसे नहीं बना सकी। 1940 से वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन एक आदमी हमसे निकल कर भाग गया और वो आज यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन के बैठा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1926 में कांग्रेस का 51वां सत्र यही गोवा में हुआ था। अब 2026 में जब कांग्रेस सत्र को 100 साल होने जा रहे हैं, 100 साल पहले यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था और उसको अब 100 साल हो गए। तो इतना महत्व आसाम के लिए कांग्रेस पार्टी दी है, देते आई है, आगे भी देते रहे। भाइयों, राहुल गांधी जी, मैं खुद हमारी पूरी टीम ने आसाम की जनता के साथ मिलकर एक मजबूत रणनीति बनाई है। और मैं गोगोई को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक डटी लीडर होते हुए भी आसाम में काम करने के लिए राहुल जी के कहने पर उन्होंने स्वीकार किया और आज उनके नेतृत्व में आज इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। एक नौजवान साथी को राहुल जी ने आपको दिया है, उससे काम लेना है, उनको मदद करना है। अगर उनको मदद करेंगे ये अपने आप को मदद के जैसा होगा। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आएगी तो यहाँ से भ्रष्टाचार निकलेगा। यहाँ जो आसाम के चीफ मिनिस्टर सबसे विश्वासघात कर रहे हैं, सबको डरा रहे हैं और यहाँ तक कि लूटमार चल रही है। और इतनी लूट शायद किसी स्टेट में नहीं हुआ जो लूट आसाम में आज हो रहा है। इसीलिए भाइयों, आपको सतर्क करना होगा, आप मिलकर काम करना होगा और खासकर युवाओं के लिए मैं कहता हूँ, अगर हमारी सरकार आएगी हम युवाओं को नौकरी दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे।
लेकिन बीजेपी ने वायदा किया, आज तक एक नौकरी नहीं दी। घर घर भटक रहे हमारे वालों, और सरकार में कई नौकरियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में कई नौकरियां खाली है, वो गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं। वो भी परसों में देखा 30-40 हजार की भर्ती हो गई, ऐसा सुना, और मोदी सर्टिफिकेट दे रहे। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके जमाने में बड़े बड़े कारखाने हो गए, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बने, लाखों लोगों को नौकरी मिली, मेडिकल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, बड़े बड़े रास्ते बने। लेकिन इनके जमाने में एक भी ऐसा काम नहीं हुआ जो लोग याद रख सके, क्या लोगों का फायदा हो सके। तो एक बोगस गवर्नमेंट है, इस बोगस गवर्नमेंट को आप सबक सिखाना चाहिए। क्या करना चाहिए? आवाज नहीं दिया आपके पास। सबक सिखाना चाहिए। सिखाएंगे आप, सिखाएंगे। देखो, सबक जब तक आप नहीं सिखाएंगे, ये मजदूर को लूटेगा, गरीबों की जमीन छीन लेगा, हर एक जमीन पर कब्जा करेगा, हर एक के जमीन को, पानी को, सब जंगल जमीन सभी लूटेगा। लूटेगे को अगर और मजबूत करेंगे तो हर गरीब और तंग होते जाएगा, गरीब गरीब होते जाएगा और अमीर अमीर होते जा रहा है। अभी आपने बताया कि अदानी अंबानी कैसे निकले हुए। अरे अंबानी का तो शुरू में 8,000 करोड़ की संपत्ति थी इसके पास, आज 13 लाख करोड़ कहां से आया? कौन दिया? किसी ने दिया, मोदी साहब ने दिया। मोदी हमेशा अपने मित्रों को अपने पैसे से मदद करके मजबूत करता है और कहता है जाओ गरीबों को ढूंढो, गरीबों को शोषण करो, और गरीबों को शोषण करके तुम 50% तुम लो, 25% मेरे को दो, मेरी आदत से सब पार्टी को बढ़ाना। ये उनका उद्देश्य है। और यहाँ हमारे जो चाय बागान के मजदूर है, उनकी हालत क्या है? उनको मिनिमम वेजेस नहीं मिलते, मिनिमम वेजेस नहीं मिलते, और उनको कम से कम तनख्वाह दिया 250 रुपए, जिस जगह का निर्माण है 350 से 400 रुपए। लेकिन उधर उनका ध्यान नहीं, चीफ मिनिस्टर का ध्यान नहीं, और चीफ मिनिस्टर अपने आप को इस देश का आसाम का बादशाह मानता है, शहंशाह मानता है। अरे भाई, जब तक लोग डेमोक्रेसी में आपको वोट देते रहेंगे तभी तो आप चीफ मिनिस्टर रहेंगे। लेकिन गलती से आपको वोट मिले, चोरी कर ली, और आप आज चीफ मिनिस्टर बनते बैठे हैं। लेकिन जो वोट दिए उनका गलत काम है। ऐसे लोग हैं बीजेपी, आरएसएस और हमारे हेमंत, ये काम कर रहे हैं। तो भाइयों, आज जो मिनिमम वेजेस का है ये भी उन्होंने नहीं कर रहे, और लेबर कोड जो गरीबों के लिए थे वो लेबर कोड भी उन्होंने मोदी जी ने
उस 4 जितने भी कोड थे 30-40 वो सभी को मिला के 4 को कोड कर दिए। सबको डराते हैं और खासकर प्रेस वालों को भी डराते हैं, मीडिया को डराते हैं, चैनल को डराते हैं। अगर कोई लिखने वाला है प्रेस जर्नलिस्ट उसको भी डराते हैं और सभी लोग चलो डरते हैं, चलो डरते नहीं। तो डरता नहीं वो जनता के साथ है, जो डरते हैं वो जनता के खिलाफ है, ये मैं कहूँगा। ये बात ध्यान रखना कि आसाम के लोग इतना आसानी से करने वाले नहीं है, वो मजबूत है। वो अपने आप को यहाँ पर एक होकर काम करने की शक्ति रखते हैं और कुछ व्यक्तियों का नाम लेकर इन्होंने आसाम में सबको डराने की कोशिश कर रही है। भाई हम तो चाहते हैं जो जेन्युइन लोग हैं, जो यहाँ रहने वाले हैं, जिनका नाम है, उन लोगों को आप दीजिए। जिनका नहीं है, जो कुछ भी है, वो बात और है। आपके पास कानून है, कानून से काम करो, लेकिन कानून से काम वो नहीं करना चाहते। ये दोनों डबल इंजन बोल देना। वो यूपी में बहुत बोलता है यूपी, हमारे योगी जी वो हमेशा यूपी में डबल इंजन सरकार। वो डबल इंजन एक योगी की सरकार यूपी की और एक मोदी की सरकार केंद्र में है। और यहाँ लोग देखकर क्या हेमंत भी यही शुरू किया है कि डबल इंजन की सरकार आसाम में बहुत काम कर रही है। कहाँ काम कर रही है? हम तुम तो केंद्र में भी तुम्हारी सरकार है ना। हम निकले गुवाहाटी से, हमारे को सिर्फ 30 किलोमीटर का रास्ता 2 घंटे लगा, 2 घंटे। और ये है इनकी गवर्नमेंट और ये कहते हैं हम डेवलपमेंट करेंगे। अरे डेवलपमेंट के नाम से तो आप पैसे खा रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम से आप लोगों को लूट रहे हैं। इसीलिए मैं कहूँगा कि ये लोग, जैसा कि राहुल जी ने कहा, शिक्षा स्वास्थ्य ये हमारी बुनियादी चीज है, लेकिन ये लोग बुनियादी चीजों को भूल गए हैं। इसीलिए ये आसाम को अगर ठीक करना है, हम सभी लोग मिल के काम करना चाहिए। और दूसरा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। राज्य में, आसाम के लोगों के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। 2 लाख करोड़, इतना कर्जा इन्होंने 10 साल में बना के रखा है। और ऊपर से वो